नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JVN प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार वंगानी, HOD Department of Repertory. I welcome you all at 1 p.m. repertory class in the month of May 2020 on digital version 2.0 at JVWU platform, which is the best women university in India. We are delivering these digital sessions on YouTube video channel at the link given below. Here you can see, as per schedule provided by the university, having the best homeopathic college in Jaipur. Please listen carefully and I hope I will be able to satisfy your quest for knowledge. And please, in case of any doubt or queries, you can drop your messages or your queries in the comment box given in the YouTube channel, which we will answer in solving session day as decided by the university. Let us now begin with the digital session. And the topic for today's digital session is eliciting mentals by the Bailey method, part 3. We already discussed two parts and now we are going ahead. So, in the continuation of asking or eliciting for mentals from the patient, we can ask the question, are you a perfectionist? And if so, in what way? क्या आप अपने काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन लाइक करते हैं? अपने आप को परफेक्शनिस्ट मानते हैं आप? अगर हाँ, तो किस तरह से आप परफेक्शनिस्ट हैं, बताइए। So, these perfectionist types in homeopathy may include arsenicum, salacia, and nux vomica. You know, nux is very workaholic type of person, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा concerned है, जबकि arsenicum is insecure of losing his work, losing money, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए परफेक्शनिस्ट है। जबकि ये एम्बिशियस है नक्स और काम में बेहतरीन होना चाहता है। साइलेशिया में कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा करके रखना चाहता है अपने वर्क को अच्छे से अच्छा। ये उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। सो आर यू एबल टू क्राई? द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन आस्क इज, आर यू एबल टू क्राई व्हेन सैड? कभी आप बहुत उदासीन होते हैं तो क्या आप रो पाते हैं? तो कुछ पेशेंट्स इसमें आपको खुल के बताएंगे, खासकर जब रैपर्ट आपकी स्टैब्लिश हो चुकी है कि साहब मैं अकेले में ठीक है रो लेता हूँ, कोई कहता है मैं कभी नहीं रोया। इस तरह से अलग अलग टाइप के आपको पर्सनैलिटीज पता चलती चली जाएंगी। एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ which I usually inquire into if the patient does not mention. Many patients are prone to feeling of anger and irritation, yet they will say they are not, since they do not express their feelings. कुछ लोग अपने गुस्से को दबा लेते हैं, तो इसलिए कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। इफ तो वो अंदर से गुस्सा होते हैं क्या, हमें ये जानना होगा। यू हैव टू आस्क देम, डू यू फील एंग्री इनसाइड? गुस्सा तो आप नहीं होते, पर अंदर से आपको गुस्सा आता है क्या? If they get affirmative answer far more often, then you have to ask further. Since expressing anger is generally not socially acceptable, even the more volatile types like Nux and Sepia try to keep it inside. कई समाज में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं मानी जाती, एक सोशल बिहेवियर में नहीं आता, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अंदर रखना पड़ता है गुस्से को। तो नक्स और सीपिया टाइप के पेशेंट, नक्स तो परफेक्शनिस्ट है तो अपने बिहेवियर को भी अच्छा रखना चाहता है, तो गुस्सा दबा के रख लेता है कई बार। Because of this, I find that the degree of anger felt is a better guide to the remedy. तो एंगर एक्सप्रेस करना एक अलग बात है, फील करना एक अलग बात है, तो डिग्री ऑफ एंगर फेल्ट हैज टू बी आस्क्ड। Types that tend to feel anger and irritation relatively easily are alumina, arsenic, ignatia, lachesis, mercurius, natramur, nux, sepia, sulfur, syphilinum, stramonium thuja, tuberculinum, and veratrum.
The kind of situations which bring forth anger help to differentiate between these types. किस बात पे आपको गुस्सा आता है, जब आप ये पूछेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या अंतर आ रहा है. अब नेट्रम्यूर है, इमोशनल चीजों पे गुस्सा हो रहा है, सेंटिमेंटल है. नक्स है, परफेक्शनिस्ट है, वर्कोहलिक है, उन बातों पे गुस्सा हो रहा है. ठीक है, तो इनमें भी आप अंतर कर पाएंगे. स्टेमोनिया में बहुत ही भक्तिभाव रखने वाला पेशेंट है, तो कोई रिलीजियस चीजों के खिलाफ जा रही चीज तब वो गुस्सा हो रहा है. थूजा है, उसके फिक्स्ड आइडियाज हैं, उसके अनुसार कोई चीज फॉलो नहीं कर पा रहा है तो वो गुस्सा हो रहा है. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी कि कौन पेशेंट किस के गुस्से का क्या आधार है. दस आर्सेनिकम इज इरिटेटेड बाय अनटाइडीनेस. साफ सुथरापन अगर नहीं है तो गुस्सा हो जाता है. बट ऑल्सो पीपल हु आर अनरिलायबल, उनसे भी वो गुस्सा होता है, जो अनरिलायबल लोग रहते हैं. जबकि इग्नेशिया इज particularly sensitive to any form of rejection or criticism. कोई छोटी सी बात के लिए भी उसको अगर क्रिटिसाइज कर दे, उसके लिए बुरा भला कह दे, उसको रिजेक्ट कर दे, इग्नेशिया को बर्दाश्त नहीं है, and will react angrily in defense. Nux and sulfur, the natural leaders, are angered by anyone who gets in the way of their plans. तो नक्स तो इतना अल्कोहल वर्कोहलिक है कि वो चाहता है कि ये चीज होके रहे. वो किसी भी तरीके से अपने काम को कर लेना चाहता है, चाहे गलत तरीके बाय हुक और बाय क्रुक गलत तरीके क्यों ना अपनाने पड़े. तो उसके प्लान के बीच में जो भी आ जाता है वो उससे गुस्सा होता है. सीपिया इज ऑफन रिजेंटफुल टुवर्ड्स मैन हु ट्राई टू गिव हर ऑर्डर्स. सीपिया ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति जो उसको मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे अच्छा फील नहीं करती. तो खासकर पत्नी पति से अच्छा फील नहीं कर रही, तो क्लोज्ड वन जिनसे सबसे ज्यादा वो लव फील कर रहे हैं, उन्हीं से वो गुस्सा हो रहे हैं. और इसके अलावा सीपिया उनसे भी बहुत गुस्सा हो रही है जो उनको नेग्लेक्ट करता है, जिनकी बात नहीं सुन रहा है. Tuberculinum and lachesis both love freedom and will not take kindly on being restricted in any way. Lachesis खुल के बोलने वाला लोकेशियस है, उसको रोका जाएगा तो अच्छा फील नहीं करेगा, वो चाहता है मैं तो बोलता रहूं. इसी प्रकार ट्यूबरकुलिनम चेंजेबल है, एक ही चीज में बंद के रह नहीं सकता, तो वो दब के नहीं रह सकता. दूसरा ट्यूबरकुलिनम में आप जानते हैं डिजायर फॉर ट्रैवल, वो उसकी एक चेंजेबल कंडीशन का ही एक एग्जांपल है. वो जगह भी चेंज चाहता है नई नई जगह घूमूं मैं. तो ये चीजें हैं जो उसको बांध के नहीं रख सकती. उसको रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा कि आप कहीं नहीं जा सकेंगे 1 महीने तक, वो उसको बर्दाश्त नहीं है, उसमें बेचैनी है. Those patients who do flare up in a temper fairly regularly and likely to be one of the following volatile types. जो रेगुलरली जिनको गुस्सा आता है, अक्सर गुस्से उनका स्वभाव ही बन चुका है, बहुत ही वोलेटाइल पेशेंट्स हैं. उनमें आते हैं एलोबिना, एनाकार्डियम, इग्नेशिया, लैकेसिस, नक्स, मर्क्यूरियस, सीपिया, सल्फर, स्ट्रेमोनियम and veratrum. Some Staphysagra people are also very prone to anger, though only the wild type of anger. You will see कि सीपिया पेशेंट गुस्से में कांपना शुरू कर देता है, इतना गुस्सा करता है वाइल्ड कि उसको कंपन हो जाती है गुस्सा करते करते. In general, the most sophisticated a patient is, the less they will admit to weakness. तो जितना आपको पेशेंट साफ सुथरा और फास्टिडियस टाइप का नजर आ रहा है, उतना ही वो अपनी वीकनेस कम बताएगा, वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाह रहा है. Patients who have changed consciously through their own efforts or with the help of therapists tend to deny negative traits that they possessed until quite recently. कुछ लोग जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ बहुत बदल लिया, वो अपनी पुरानी चीजों को अब भूल जाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, उसको डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, जो कि खासकर नेगेटिव है. और उन नेगेटिव चीज तक पहुंचने से ही आपको उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है. तो उन्होंने यहाँ पे थेरेपिस्ट के द्वारा या अपने सेल्फ
एफर्ट्स के द्वारा एक अंदर एक पैचअप कर लिया है अपने आप को, उससे पार पा ली है, लेकिन उसके अंदर आपको जाना होगा, तभी आप उसकी गहराई से पर्सनैलिटी को जान पाएंगे. If you suspect that a person is a particular type but they deny having the weakness of that type, ask if they used to possess them. Very often the patient will willingly confirm this. अगर आपको बात करते करते लग जाता है कि ये पेशेंट तो बहुत ही इनसिक्योर टाइप है, लेकिन वो उसको बातचीत में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा, वो इसको मानने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्टली भी उसको पूछ सकते हैं कि आपको असुरक्षा रहती है क्या? डू यू फील इनसिक्योर? नो, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. बट you have so much confirmed about this that now you want to confirm it. Personal growth does not change the constitutional type. Hence, previous characteristics can be used in the homeopath assessment. तो कितनी भी उसने पर्सनली अपने आप को पैचअप कर लिया हो, कितना ही उसने अपने आप को बदल लिया हो, कितना ही उसने अपने आप को ट्रेन कर लिया हो, लेकिन उससे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होता, उसका टेम्परामेंट पता चलना आवश्यक है, वो पता चल जाता है, उसके हिंट्स मिलते हैं. इन दिस रिगार्ड आई फाइंड दैट एन इंक्वायरी इनटू द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज वेरी हेल्पफुल. ऐसे में बचपन के बारे में पूछिए आप कि आप बचपन में कैसे थे. आप बहुत शरारती थे, बहुत एक्सट्रोवर्ट थे, और अब आप इंट्रोवर्ट हैं, तो ये हो सकता है कि आपने अपने पर्सनैलिटी में पैचअप कर लिया है. तो आपको उन घटनाओं को जानना होगा फिर कि ऐसा क्या हुआ था, अब आप ऐसे कैसे हो गए हैं. As people get older, they learn to compensate their weakness, to control their excess, and to hide traits which are not socially acceptable. The personality of the child is relatively unmodified by such adaptations. वो नेचुरल है, जो पर्सनैलिटी चाइल्डहुड की है वही उसकी नेचुरल है, वही उसकी टेम्परामेंटल है. बाद में तो सिर्फ पैचअप किया हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटीज आपके सामने है. Only pulsatilla and calcarea children are likely to change types as they grow older. लेकिन हर पर्सनैलिटी अपने आप को चेंज भी नहीं कर पाती. पल्सिटिका और कैलकेरिया बहुत आसानी से और फ्रिक्वेंटली देखा गया है अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर पाते हैं व्हेन दे ग्रो ओल्डर. Just as patients often possess the trait which they go to great lengths to deny, so patients who are determined not to be like their father or mother often share the same constitutional type with this parent. तो ऐसे पेशेंट्स जो कि लंबी बातचीत के बाद भी इस चीज़ को नकारते रहते हैं कि ये ट्रेड्स या ये पर्सनैलिटी उनकी नहीं है जो उनके फादर और मदर की थी, क्योंकि वो ऐसे बनना नहीं चाहते हैं, वो उन नेगेटिव ट्रेड्स को अपने अंदर देखना नहीं चाहते, लेकिन वो उनमें होगा. Thus, I sometimes make inquiries about the personality of parent. तो ऐसे में अगर पेरेंट्स की पर्सनैलिटी को जान लोगे तो ये कंफर्मेशन देगा कि उनमें ये चीज आई होगी. The person who showers her child with love and attention, determined not to be like her cold mother. जिस व्यक्ति को खुद को प्यार नहीं मिला अपने माँ बाप से, वो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार देने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि नेट्रम्यूर. Whilst the man who drops out from society and profess to be indifferent to whom others think of him probably belongs to the same type of his lycopodium father. इसी प्रकार जो लाइकोपोडियम है वो अपने आप को सोसाइटी से ड्रॉप आउट फील कर रहा है और सोसाइटी से थोड़ा इंडिफरेंट हो रहा है, क्योंकि उसके फादर खुद एक लाइकोपोडियम फादर थे. वो क्यों सोसाइटी से ड्रॉप फील कर रहा है? क्योंकि उसकी डोमिनियरिंग पर्सनैलिटी दब के नहीं रहा और पीछे छूटता चला गया. One who tried hard to make it in the world and always courted popularity. और जिसने सिर्फ अपनी इज्जत को सबसे ऊपर माना, मटेरियल को नहीं, झुका नहीं और चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, ऐसा व्यक्ति लाइकोपोडियम हो सकता है, खासकर जब पता चल जाए इसके फादर की पर्सनैलिटी भी लाइकोपोडियम की ही है. तो लाइकोपोडियम पेशेंट देखिए अपनी इज्जत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, वो अपनी इमेज पे, इमेज कॉन्शियस पेशेंट है, इमेज बनाना चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है, इसके लिए वो पैसों की परवाह नहीं कर रहा है.
A patient's profession can reveal a good deal of useful information and should not be ignored. तो पेशेंट काम क्या करता है ये भी इसके बारे में एक बहुत ही जरूरी जानकारी उपलब्ध करा सकता है. आर्सेनिकम नेट्रम हैव गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, क्योंकि ये बहुत फास्टिडियस होते हैं आर्सेनिक एंड नेट्रम, इसलिए ऑर्गेनाइज करने में ये बहुत अच्छे होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इनमें होती है तो ये अच्छे लीडर भी हो सकते हैं. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे मिलते हैं. जबकि काउंसलर थेरेपिस्ट दे आर ऑफन नेट्रम क्योंकि सेंटिमेंटल और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो दूसरों के दुख को समझते हैं, अच्छे आ, सुनने वाले होते हैं ये, तो ये अच्छे काउंसलर और थेरेपिस्ट भी होते हैं. because they are good listeners but not so keen to talk about themselves. खुद के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते लेकिन दूसरों के दुख को एब्जॉर्ब करना जानते हैं ये. Calcarea is often to be found in jobs that are either practically oriented, such as mechanic, or else in clerical and secretarial roles. Calcarea tends to avoid taking too much responsibility and often accepts work well below his intellectual capabilities. तो कैलकेरिया क्या है कि बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेना नहीं चाहता. वो किसी के अंडर में काम करना चाहेगा तो क्लैरिकल और इस तरह के जॉब्स, सेक्रेटरी बनना पसंद करेगा वो, नॉट चेयरमैन. या फिर ऐसे काम जैसे मैकेनिक, हेड मैकेनिक कोई और है, वो मैकेनिक उसके अंडर में काम कर रहा है, किसी न किसी के अंडर में काम करना चाहेगा कैलकेरिया का, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल बनना नहीं चाहता किसी भी चीज के लिए. Lycopodium is often found in scientific computing positions, in salesman job, and also in businesses of their own. देखिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छा सेल्समैन हो सकता है क्योंकि वो बोस्टिंग करना बहुत अच्छी तरह से जानता है, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बोलना और लोगों को कन्विंस करना. एंड दे आर ऑल्सो सीन समटाइम्स इन टीचिंग प्रोफेशंस, और टीचिंग में भी वो अच्छा साबित हो सकता है. Artistic skills are seen most commonly in lachesis, natramure, phosphorus, vipia, ignatia, cellaceae and medurinum. जो आर्ट है वो उन लोगों में ज़्यादा अच्छा निखर के आता है जो कि थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं. तो नेट्राम्यूर, phosphorus, sepia, ignatia, medurinum, cellaceae, they are such type of personalities. Sulfur and Nux vomica are natural leaders and are unlike to remain in subordinate position for long. देखिए नक्स अपने काम में, वर्क में एक नेचुरल लीडर है. सल्फर फिलोसफिकल वर्क्स में एक नेचुरल लीडर है. तो दे आर अनलाइकली टू रिमेन सबऑर्डिनेट पोजीशन. ये चाहते हैं हम हेड रहें किसी ना किसी वर्क के. इफ दे आर नॉट एट द टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे आर लाइकली टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. तो अगर उनको लगता है उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है कहीं, तो वो उसको छोड़ के अपना काम करना पसंद करेंगे. CPI is often attracted to the healing professions, particularly to nursing and physiotherapy and other hands-on therapies. तो सीपिया सेवा के प्रोफेशंस में ज़्यादा जाना चाहेंगी जहाँ पे हीलिंग करना हो, नर्सिंग करना हो. Pulsatilla, if she works at all outside the home, often chooses one of the caring professions, whilst tuberculinum seeks either mental stimulation from his work or adventure. तो ट्यूबरकुलिनम ऐसे जॉब में जाना चाहेगा जहाँ उसको फ्रिक्वेंट चेंज मिल रहा है, यात्रा करनी पड़ रही है, मार्केटिंग का जॉब, जगह जगह विजिट करना पड़ता हो. जबकि पल्सला घर से बाहर जाके जॉब करना चाहता है पेशेंट, तो उसको केयरिंग प्रोफेशन चाहिए जहाँ इमोशनल केयरिंग उसको करने की काम मिले उसको. There is a saying amongst homeopaths that one should never believe what the patient says, whilst this is deliberately provocative and overstates the case. There is some truth behind it. कई बार होम्योपैथ कहते हैं कि पेशेंट कह रहा है उस पे मत जाओ. तो ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि पेशेंट, जैसे मैंने बताया, अपनी पर्सनैलिटी के नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा के मतलब अच्छे पॉइंट्स को बोलना चाहता है, अपनी अच्छी इमेज सामने रखना चाहता है. तो ऐसे में नेगेटिव एस्पेक्ट्स तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा. Not only do many patients try to hide their weakness from the homeopath,
Many more succeed in hiding them. Hence, one should not expect patient to give accurate picture of themselves. तो कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि पेशेंट आपको बनी बनाई पिक्चर एक प्रोड्यूस करके दे देगा, बना के दे देगा कि मैं इस तरह का हूँ. You have to elicit. Often the way a patient says something is more important than what they say. कई बार पेशेंट ने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, कैसे कहा वो इम्पोर्टेंट होता है. I remember an interview with a young campus religious minister who was seeking treatment for post-viral malaise. He appeared open and friendly and professed to being relatively liberal and progressive as ministers go. एक मिनिस्टर जिसने कि एक ऐसे वार्ड में विजिट किया जहाँ पे कि वायरल के बाद के पेशेंट्स जो रिकवर हो रहे थे वहाँ भर्ती थे, तो वो उसने ओपनली कहा कि मैं देखिए बहुत दोस्ताना हूँ, और इस तरह से अपने आप को प्रचार किया कि मैं बहुत ही खुले दिमाग का हूँ और बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइप का व्यक्ति हूँ. There were a few helpful mental features, and the physicals were also rather non-specific. It eventually became clear that the most noticeable aspect of his personality was certain formality and politeness. लेकिन ये सब उसकी politeness और formality थी, तभी तो एक मिनिस्टर था. तो केवल लिप सिंपैथी, और ऐसा उसके ग्रैंड पेरेंट्स में भी देखा गया. तो जनरेशन्स के साथ उसके अंदर भी ये चीज आई, एक फॉर्मेलिटी रखना, एक पोलाइटनेस रखना लिप्स पे. तो ये मिनिस्टर्स के अंदर देखा जाता है कि वो बहुत अच्छे और बहुत ही मैग्नेटिक टाइप्स नजर आते हैं. Furthermore, his very position as a religious minister on a university campus surrounded by predominantly boisterous students served to emphasize his formality and squareness. उसकी पोजीशन भी तो ऐसी थी उस मिनिस्ट्री में, उसका सामना ऐसे लोगों से होता था जो कि अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते थे. तो ऐसे में उसको इस तरह का बनना भी तो पड़ता था. It was this stiffness of character that led to the prescription of Calicar rather than the words he chose to describe. तो हम उनके शब्दों पे नहीं गए, हमने देखा कि जो उनका तरीका था, जो उनकी कैरेक्टर की पोजीशन थी, उनका आंतरिक चरित्र था, उसके आधार पे कैली कार्बोनिकम निकल के आई. Very often, the impression that patient gives is more useful than the content of his speech. Thus, the patient who is very matter of fact and is visibly impatient at having to discuss his emotions when all he wants is treatment for his backache may well be nuts phobica. तो कई बार जो पेशेंट बोल रहा है उसके बजाय वो कैसे बोल रहा है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो कई बार पेशेंट दिख रहा है कि बहुत ही इम्पेशेंट है, वो मतलब बेचैन है, इंतजार नहीं कर पा रहा है, लेकिन है क्या उसको सिर्फ बैकएक. तो सिर्फ इस इम्पेशेंस के बेक पे हम के आधार पे हम इस बैकएक को पहचान रहे हैं कि ये नक्सोमी का पर्सनैलिटी का बैकएक है. तो उसने क्या कहा उस पे हम नहीं गए, कैसे कहा, उसने इम्पेशेंटली कहा. Similarly, the patient who denies being fastidious or prone to anxiety, but who observes the homeopath throughout the interview with an air of wariness or suspicion and wants to know exactly what side effects to expect is likely to be arsenicum. तो एक पेशेंट जो कह रहा है कि नहीं साहब मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हर चीज बहुत साफ सुथरी चाहता हूँ, बहुत चूजी हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है साहब, लेकिन वो लगातार फिजिशियन या होम्योपैथ के आंखों में देख रहा है, शक के साथ देख रहा है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, उसकी इनसिक्योरिटी साफ दिख रही है, उसको लग रहा है कि इसकी दवाई से मेरे को साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, तो दैट पेशेंट में बी आर्सेनिकम. तो आप सिर्फ उसको देख के पहचान रहे हैं, वो क्या कह रहा है उससे नहीं. With experience, homeopath learns to give much importance to the non-verbal clues as to the verbal one. तो कई बार पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज से ही हम उसको पहचानने लग जाते हैं रादर देन कि वो क्या कह रहा है. तो ये था आज का लेक्चर. And at the end of this lecture, I would like to give you an assignment, and the maximum marks allotted to this assignment is 10.
and the time is allotted is 30 minutes. The question is of subjective type, which is as follows. Loss of self-confidence of patient and their worries indicate to certain remedies. तो पेशेंट्स में आत्मविश्वास की कमी और उनकी चिंताएं कुछ दवाइयों की ओर इशारा करती हैं. डिस्कस विद एग्जांपल. कुछ दवाइयों के बारे में आप उदाहरण देते हुए इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से लिखें. So बिटिया, hope you liked and grasped the session. I hope I'm able to satisfy your quest for knowledge. In case you have any doubt in your mind, any query, you can drop your comments in the comment box given here in the YouTube channel, and we'll try to resolve the query. Thank you all for being attentive. Take care of your health. See you again with a new lecture. Till then, goodbye.